Hello students, I'm Arunendra Soni and today I will teach you verbal ability part that everyone fears of, right? कि क्या होता है verbal ability, कैसे इसमें part लेंगे और कैसे इसको handle करेंगे. Actually verbal ability is nothing but your basic understanding of language, that what like it's like quant only. You have studied everything in your 9th and 10th standard and it's what is needed. Again you have to work on that quant aptitude में same is there in your verbal ability test. Verbal ability test comprises of many things and that is what you have to understand. वो steps क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, अगर आप उनको समझ जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से handle कर लेंगे. Right, so today I'm going to talk about the concept and some of the exercises. And if you like this video, if you enjoy this video, I'll definitely come up with a complete series of verbal ability test. Probably at least one video every week. So here we go. What actually verbal ability or verbal ability question covering or comprises. यहाँ पर एक close passage बहुत important part है. That is what you have to understand. Close passage. Close passage is nothing but it's a passage, right? And then from the passage some words are lifted and you have to replace the right word. So it is nothing but it is FIB, fill in the blank. So fill in the blank and close passages are almost close. मैं इनके rules हैं, उन rules को अगर आप understand कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे. When it comes to reading comprehension, it is nothing but your understanding of, or rather your comprehension power of a passage, given passage, and then questions based on that passage, and that is what you have to handle. Sentence correction or rather error detection, this is one part जो बताता है कि किस तरह से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर के कंप्लीट जो ग्रामर है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने अप्रोच डेवलप कर ली तो आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं यहां पर सेंटेंस कंप्लीशन की, सो सेंटेंस कंप्लीशन अगेन इज अ काइंड ऑफ क्लोज पैसेजेस ओनली. I'll tell you. Vocabulary यानी कि it covers like all, so many things can be done, right? यहाँ पर आपका synonym हो सकता है, यहाँ पर आपका antonym हो सकता है, यहाँ पर आपका OWS हो सकता है, one word substitution हो सकता है, homonym, homophone कुछ भी हो सकता है. So basically you have to understand vocab in a different manner. अगर बात करते हैं हम पैराजंबल की, तो पैराजंबल is something which comes in almost every competition. There are the approaches, उन approaches को अगर आप यूज करेंगे तो पैराजंबल को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे. Then active voice, passive voice and then the forms of speeches, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड करना होंगी. तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं. पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एरर डिटेक्शन. और एरर डिटेक्शन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से हैंडल कर लिया. देन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप सबको पता है देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन पे ही आपको फोकस करना है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउन, राइट? नाउन से लेकर के शुरुआत से करके आपको लेकर के कंजंक्शन तक जाना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. What is noun, the kinds of noun कितने होते हैं, and every noun is a subject. Then according to a particular noun, what subject comes, वो चीज़ों को समझना होगा आपको, right? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये होता है कि द ज्यूरी मीन्स द नंबर ऑफ जजेस और द जजेस का एक पूरा ग्रुप है. जैसे ही मैं ज्यूरी बोलूँगा ये कलेक्टिव नाउन है, आपको याद आना चाहिए. तो ज्यूरी, इसके बाद में एक कोई केस आया हुआ है तो ज्यूरी यूनिनिमसली, अगर यूनिनिमस वर्ड आ गया यानी कि एग्री कर रहे हैं साथ में तो इज आ रहा है. द ज्यूरी इज यूनिनिमसली एग्रीइंग अपॉन द वॉट एवर केस इज देयर, तो यहां पर इज यूज किया. और दूसरी ओर मैं कह रहा हूं ज्यूरी आर डिवाइडेड, बिकॉज डिवाइड हो रहा है तो आर हो रहा है. तो ज्यूरी इज वन केस जो कि सिंगुलर भी यूज हो रहा है, प्लुरल भी यूज हो रहा है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग है और उसको सॉल्व करना आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे से आना चाहिए. एंड फॉर दैट देर आर 100 गोल्डन ग्रामर रूल्स का मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो वीडियोस शेयर होंगे आपसे और उन वीडियोस को आपको देखना होगा. वंस यू आर एबल टू कंप्लीट दोज 100 गोल्डन ग्रामर रूल्स, यू आर एबल टू डू देम. सो दिस इज व्हाट लाइक आई टॉक्ड अबाउट नाउन. सिमिलरली अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो ऐसे ही प्रोनाउन होता है.
कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होना है, कहाँ पर एम्फेटिक यूज़ होना है, कहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने को इंट्रोड्यूस करने में बोल देते हैं माई सेल्फ दिस, राइट, माई सेल्फ अमित बहल। सो माई सेल्फ इज रॉन्ग हियर बिकॉज माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर मैं खुद। तो यू कैन नॉट से मैं खुद ये हूँ, मैं खुद अरुणेंद्र हूँ, आई कैन नॉट से। सो माई सेल्फ इज रॉन्ग देयर। सो वंस योर verbal abilities is strong, your spoken power is going to be equally strong soon, right? तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। आई डिसलाइक माई चाइल्ड वॉचिंग टीवी। तो देखिए यहां पर आई, आपको पता है यहां पर आई जो है वो प्लूरल है। इफ आई इज प्लूरल तो डिसलाइक्स प्लूरल, ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल, सो यू हैव टू मेक देम सिंगुलर। क्या करना होगा? डिसलाइक्स करना होगा। शी डिसलाइक्स, तो शी के साथ डिसलाइक्स आएगा, लेकिन आई यू दे इन सबके साथ में प्लूरल आएगा, यानी कि दिस पार्ट इज राइट। नाउ व्हाट इज द एरर? माय चाइल्ड, चाइल्ड इज नाउन और नाउन के पहले आपने एडजेक्टिव माइल्ड लगा लिया, तो माय चाइल्ड ये भी सही हो गया है। वॉचिंग टीवी और ऑल द टाइम इज गुड। तो यहां पर माय चाइल्ड वॉचिंग टीवी में एरर है एक्चुअली। तो अब इसमें एरर क्या है वो अगर आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो फिर बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि अमित कार, तो ये अमित कार इज रॉन्ग बिकॉज अमित इज अ नाउन एंड कार इज अ नाउन, राइट। तो यहां पर हमको क्या करना होगा? अमित कार, बिलोंगिंगनेस, या फिर कार ऑफ अमित, तो कार ऑफ अमित गलत है, अमित कार यहां पर होगा। सिमिलरली यहां पर चाइल्ड वॉचिंग, चाइल्ड इज नाउन एंड वॉचिंग इज अ नाउन। आप कहोगे वॉचिंग यहां पर आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है, यहां पर ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो चाइल्ड वॉचिंग ना करके बच्चे का देखना, बच्चे का टीवी देखना, तो दिस हैज टू बी चाइल्ड्स वॉचिंग, माई चाइल्ड्स वॉचिंग। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आता है, जो एग्जाम में आता है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा, राइट। तो चलिए ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, और सेकेंड सेंटेंस में देखिए मैंने यहां पर क्या कोशिश की हुई है लेने की, यहां पर उसको अंडरस्टैंड करिए। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। अब देखिए आप खुद यहां पर क्लियर हो रहा है, रोड क्रॉस करते हुए एक कार ने उसको ठोक दिया या एक कार ने उसको हिट कर दिया। तो रोड जो है वो कौन क्रॉस कर रहा था? Whether car was crossing the road or person was crossing the road, this is not clear। तो यहां पर क्या हो गया? ये मिसप्लेस्ड है, मॉडिफायर, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहां पर हम जो क्रॉसिंग द रोड के पहले हम लगा देंगे यहां पर while he was क्रॉसिंग द रोड। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था एक कार ने उसको हिट किया। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, सो यू गॉट वेयर इज द एरर। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो कह रहा है द कैप्टन विद ऑल हिज टीम वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर आपने हेल्ड भी सही है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है, यहां पर वर्क क्या सही है गलत है वो समझना होगा। कैप्टन यहां पर आपका सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चलते हैं। वर्ब जो है वो ये हमारा वर्ब प्लूरल है, तो यहां पर हम वर्ब को की जगह क्या कर देंगे? वॉस कर देंगे, क्योंकि ये विद से कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि दो सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरह से वर्ब का यूज करेंगे वो समझे। जैसे द कैप्टन अपनी टीम के साथ जिम्मेदार ठहराया गया, सो द कैप्टन with all his team was held responsible। बट अगर इसको ही हम बदल दें, not only the captain but also the whole team was responsible, तो यहां बदल जाएगा। यहां पर वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा। ये अभी जैसे ही जब इसके कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट थर्ड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेंटेंस कह रहा है नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज No monument in the world is so beautiful as the Taj Mahal। ठीक है, नो मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज महल। वापस एक बार कंफ्यूजन तो हो गए बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो यहां पर क्या होगा? सो के साथ एज लगा हुआ है, और सो के साथ एज हम लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंस में, और जब एज लगाते हैं तो पॉजिटिव सेंस में लगाते हैं। सो दैट लगाते हैं तो उसका एक अलग सेंस होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सो एज एंड सो दैट का हम यूज कब करेंगे? तो ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंस में अगर देखा जाए तो नो तो ऑलरेडी दिया है, तो उस तरह से सो और एज अपनी जगह सही है। फिर गलती क्या है?
यहां पर नो मॉन्यूमेंट कर दिया। नो मॉन्यूमेंट ना करके हमको ये क्या करना होगा, नो अदर मॉन्यूमेंट, नो अदर मॉन्यूमेंट। अब सब ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं, वंस यू प्रैक्टिस देम आपको आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि नो मेटल इज यू नो एज प्रेशियस एज गोल्ड, तो गलत हो जाएगा। नो अदर मेटल इज एज प्रेशियस एज गोल्ड और नो अदर मेटल इज सो प्रेशियस एज गोल्ड, बिकॉज नो आपने यूज कर लिया है, तो यहां पर आपको अदर यूज करना है, राइट? जैसे टी इज एज गुड एज कॉफी, तो सही है। टी इज नॉट सो गुड एज कॉफी, सही है, क्योंकि नॉट लगा दिया आपने, तो नो इज काइंड ऑफ नॉट ओनली। तो यहां पर आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, पूरे पैटर्न को चेंज करना होगा। बात करते हैं फिफ्थ की, मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो वापस फिर वही हो गया, अगर आपको प्रैक्टिस हो तो आपको पता होगा कि जब कभी भी हम मेनी आ लगाते हैं तो हमारा जो ये मैन है वो सिंगुलर होगा, तो मेनी अ मैन सिंगुलर है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब मेनी अ मैन है तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहां पर हैव की जगह हम क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। मेनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी। ऑन द अदर हैंड दूसरा इसका पार्ट क्या होना चाहिए, मेनी मेन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, लेकिन वहां पर आपको दो चेंज करने थे, आ और मैन में, तो वहां पर आपने बेटर कि आपने हैज कर दिया हैव की जगह, एंड द सेंटेंस इज करेक्ट। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड कि इट्स नॉट टफ, इट्स इजी। सिमिलरली आप देखिए सिक्स सेंटेंस को देखिए, यहां पर आसान है, क्लियर कर लोगे आप, समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस 30 years अगो। बांग्लादेश हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस 30 years अगो। अब मैंने ये सेंटेंस देखते ही मुझे ग्रामर के उस रूल की ओर मैं चला गया और मुझे पिक्चर क्लियर हो गया कि जब कभी भी हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट की बात हम दो तरह से करते हैं। एक पास्ट की बात हम करते हैं जब हम यूज करते हैं टाइम, और टाइम जब यूज करते हैं तो हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, तो यहां पर मैंने लास्ट नाइट मेंशन कर दिया तो मैं बोलूंगा आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट। लेकिन अगर यहीं पर मैं मेंशन कर दूं आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, सही है, लेकिन अगर लास्ट नाइट नहीं दिया हो तो मैं क्या लिखूंगा कि आई हैव रिटन अ लेटर। तो व्हेन टाइम इज मेंशन्ड यूज सिंपल पास्ट, व्हेन टाइम इज नॉट मेंशन्ड यूज What you have to use? Use present perfect. अब has come आप सब जानते हैं, ये has come क्या है, ये present perfect है, इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम दिया है, और टाइम देने की जगह has come की जगह हम कर देंगे यहां पर came कर देंगे। So बांग्लादेश came into existence, now this sentence is correct। तो देखिए मैंने ये 6 सेंटेंसेस आपको कराया और उनको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश की है। एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बात करते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ कह रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। जब कभी भी हम वन ऑफ द यूज करेंगे, वन ऑफ द बॉय इज गलत है, वन ऑफ द बॉयज इज, उनमें से एक, वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स, तो हम उनमें से एक बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहां पर आपको कर देना है बुक्स, error is in C and now the sentence is correct, right? बात करते हैं एर्थ की। Had the police not reached here on time, he would have killed by criminals. He would have killed by criminals. See, सेंटेंस बड़ा लग रहा है, एरर बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन जिनको प्रैक्टिस होती है, द पीपल हु नो देम, इट्स नॉट टफ। यहां पर जैसे ही हैड द पुलिस दिया हुआ है तो यहां से ही मुझे समझ में आ गया कि दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब जब बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की तो आपको पता होना चाहिए कितनी तरह की कंडीशन होती हैं, कैसे कंडीशन बनती हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, एंड दिस ऑल नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट? ही वुड हैव किल्ड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हैड दिया हो तो वुड हैव आता है, लेकिन यहां पर जो बाय दे दिया इसने बता दिया कि ये पैसिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म होने से क्या होना चाहिए, ही वुड हैव के बाद में हम लगाएंगे बीन। तो हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, ही वुड हैव बीन किल्ड बाय द क्रिमिनल्स, उसे क्रिमिनल्स ने मार दिया होता। कितना सिंपल लग रहा है बट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल मुझे लग रहा है बिकॉज all these concepts are there in my mind, so the moment I see a sentence I can find it out how to handle it, right? चलो 9th की बात करते हैं। I want to get rid। अब get rid बोलते ही if you are in practice you know get rid के बाद में off आता है, get rid of this, not get rid from this, you want to get rid of, तो get rid के साथ में आपने off लगाना है and the error is solved। A program on child welfare was recently telecasted by the news channel। टेलीकास्ट जो है ये टेलीकास्ट के तीनों फॉर्म, टेलीकास्ट होते हैं, कास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होते हैं,
टेलीकास्ट, फोरकास्ट होते हैं। तो देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो अनचेंज्ड होते हैं, उनका जो फर्स्ट फॉर्म है वही लास्ट तक बना रहेगा विदाउट एनी चेंज, राइट। तो ये इस तरह से मैंने आपको 10 सेंटेंसेस कराया और बताने की कोशिश की कि किस तरह से इनको हैंडल करेंगे। दैट इज वन एरिया। इस तरह से हमको अंडरस्टैंड करना है, अपने वर्बल एबिलिटी टेस्ट को समझना है। अब मैं थोड़ा सा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, एक 4 या 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पार्ट आ जाता है वोकैब का। पहला सेंटेंस इसमें है डिसबिलीवर इन गॉड, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। तो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 4 ऑप्शंस दिए, एग्नोस्टिक, एथीस्ट, थियोलॉजी एंड अल्ट्रुइस्ट। अगर मैं यहां पर चलूं और आपको एक रूट समझाऊं कि जहां कहीं पर भी आप देखेंगे थीस्ट, तो थीस्ट वर्ड जो है वो आ रहा है हमारी एक रूट से, एंड दैट रूट स्टैंड फॉर गॉड, राइट। तो यहां पर थीस्ट जो है वो थियो से बना हुआ है, राइट। तो जो बंदा थीस्ट होगा वो बिलीव करेगा गॉड में, और अगर नेगेटिव प्रीफिक्स आ लगा दिया, अथीस्ट बन गया, तो वो हो गया वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आपने समझा थीस्ट। अब इसी वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। जैसे एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है गॉड तो है लेकिन कहां है, नो वन नोज। वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट वेयर इज गॉड, नो वन नोज, दैट इज व्हाट एग्नोस्टिक, राइट। अब मैं अगर थीस्ट को थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी, सुनी हो शायद आपने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आपने सुना होगा। सोचने की कोशिश करिए कि थियोसॉफिकल क्या हो सकती है। थियो आपको पता है कि थियो स्टैंड फॉर गॉड, और सोफो वर्ड आपने कहाँ सुना है, सोफो आपने सुना है सोफिस्टिकेटेड में, और सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है, बहुत जेंटल होना। बेसिकली वर्ड सोफो इज द रूट ऑफ नॉलेज, सोफो जो है वो नॉलेज की रूट है। तो यहां पर थियोसॉफिकल क्या हो गया, नॉलेज अबाउट द रिलीजन, नॉलेज अबाउट द गॉड, ईश्वर के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं, रिलीजन के बारे में स्टडी करते हैं, तो थियोसॉफिकल वर्ड वहां पर यूज किया जाता है। इसी से सोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, सोफोमोर जैसे वर्ड बने हैं। थियोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज रिलीजन, राइट। अब बात करते हैं अल्ट्रुइस्ट की। अल्ट्रुइस्ट ऑल्टर से आया है, ऑल्टर मीन्स अदर होता है। सो अल्ट्रुइस्ट जो है वो बंदा वो होता है जो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है, यानी कि जो परोपकारी होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। तो अब अगर मैं फिल्म को एक्सप्लेन करूं, ऑल्टर को एक्सप्लेन करूं, तो 30-40 वर्ड से यहां पर तैयार हो जाएंगे, सिर्फ विद ओनली वन, दैट इज व्हाट डिसबिलीवर इन गॉड। अगर इससे ही हम लोग लेकर के चलेंगे तो वी कैन मेक नॉट लेस देन 40 वर्ड्स। So just imagine what kind of in-depth knowledge is needed to understand English in a better manner. So this is what actually I wanted to share it, with you all in today's video. If you love the approach, if you love and if you want that these kind of videos I should be continue with, then do comment and keep sharing. And if you haven't still subscribed our channel, then you must subscribe our channel and start preparing for your better future. Thank you very much.